Very good morning to you all. Once again, I'm with you with our chapter The Lost Child by Mulk Rajanand, an Indian writer. Students, yesterday in previous lectures, what we read in the story, and I have described it to you also. Once again, I'm giving a short description of the story, whatever we read in our previous lectures. So, we read about a child who goes to a spring fair with his parents, and he was fascinated by each and everything whatever was there in the fair, and he was very happy and excited, and he saw such a big crowd in his life first time. There were narrow lanes there everywhere. He could see many people's throngs everywhere, and he wanted to buy many things there. He wanted to buy some toys which were attracting him, and he wanted to buy some sweets, especially burfi. But he was hesitating to say his desire to his parents, because he already knew about the nature of his parents. His father always looked him towards him with red eyes, and he never fulfilled, he couldn't fulfill any of his desires in the fair. And now we are moving ahead in our story, and we are starting from our paragraph. A man stood still. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. Now, what the child sees in the fair? In first paragraph, we came to know about what he sees in the fair. He saw the garlands of gulmohar. He was attracted by these things also. Now he was attracted by balloon, many types of many colorful balloons. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. There was a balloon seller also in the fair who was having multicolor balloons. He was having yellow color, red color, green color, and purple color balloons with him. And the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Now, what is told in these lines? The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. Carried away by means वो जो है फिर से जो है उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और ये जो गुब्बारे थे, रेनबो कलर्स थे, इनकी ग्लोरी, इनकी चमक को देख करके, इनके सिल्क जैसे कलर को देख करके जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए बगैर नहीं रह पाता है। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। और उसके अंदर जो है एक एक्सेसिव डिज़ायर आ जाती है कि ये सारे गुब्बारे जो है उसको मिल जाने चाहिए, काश ये जो है सारे गुब्बारे उसको मिल जाते, उसके होते। But he well knew his parents would never buy him the balloons, because they would say he was too old to play with such toys. Now, what the writer tells us here, but he well knew his parents would never buy. Child already knew about the nature of his parents. He already knew that his parents wouldn't buy anything for him. And what they will say, the balloons, because they would say he was too old to play with such toys. He has become enough mature that he can't play with such type of toys. It means he is not so younger now that he play with these things. उसके पेरेंट्स उसको क्या कह के रोक देते हैं? उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि अब तुम इतने छोटे नहीं रहे कि इस तरह के टॉयज़ के साथ खेलो। सो ही वॉकड ऑन फादर, और वो जो है आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अ स्नेक चार्मर। इन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट वी विल सी इन द फेयर बाय विच द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड अगेन। अ स्नेक चार्मर, एक सपेरा, stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket.
snake charmer was playing a flute and there was a snake with him in the basket which was coiled. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. और जो है जब वो स्नेक चार्मर अपनी फ्लूट बजा रहा होता है तो सांप जो है धीरे से अपना सिर ऊपर उठाता है और उसका सिर जब वो ऊपर उठाता है तो कैसा नज़र आता है, ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, एक स्वान की गर्दन की तरह जो है वो नज़र आता है. वेल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. While the music stole into its invisible ears. Now the writer tells that how that snake heard the noise, listened that noise. While the music stole into its invisible ears, जैसे कि जो है जो म्यूजिक है वो उसके invisible ears, as you all know, a snake has no ears. उसके कान नहीं होते लेकिन उसको फिर भी म्यूजिक सुनाई देता है थ्रू इट्स वाइब्रेशंस. लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे इनविजिबल वाटरफॉल होता है और उसकी एक सॉफ्ट साउंड हमें दूर तक सुनाई देती है, वैसे ही जो है सांप के कानों में भी इस म्यूजिक की आवाज़ पहुंच रही थी. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. अब बच्चा जो है सपेरे की तरफ चला जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब जो है उसको फिर से ध्यान आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको forbidden मीन्स मना कर रखा है, रिफ्यूज़ कर रखा है to go to a people like snake charmer, ऐसे आदमी के पास जाने से मना कर रखा है जो इस तरह का म्यूजिक बजाता हो. एंड वो ये सोच करके आगे बढ़ना शुरू कर देता. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. नाउ वट ही सो देयर इन द फियर. नाउ द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट, एक झूला देखता है बड़ा और जो कि पूरी तरह से जो है अपनी स्विंग में था. मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लपूल मोशन, श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर. और उसने देखा कि इस झूले में जो है बहुत सारे आदमी, औरतें और बच्चे जो है बैठे हुए थे और उस झूले में जो है वो सारे घूम रहे थे और सारे बड़ी खुशी से जो है चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब जो बच्चा है उनको बड़ी ध्यान से देखता है, बड़ी उत्सुकता के साथ देखता है और फिर जो है थोड़ा सा साहस जुटा करके बोल्डली जो है रिक्वेस्ट करता अपने पेरेंट्स से कि मुझे जो है उस राउंड अबाउट पे जाना है, मैं उस राउंड अबाउट पे जाना चाहता हूँ, झूले पे जाना चाहता हूँ. प्लीज़ पापा, प्लीज़ मम्मा. बट what he sees there, there was no reply. उसको कोई जवाब नहीं मिलता. He turned to look at his parents. He turned himself but he didn't find his parents there. They were not there ahead of him. वो उसके आगे जो है नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो जो है दूसरी साइड में देखने के लिए मुड़ता है. दे वर नॉट देयर बट ही डिडंट फाइंड देम देयर ऑल्सो. ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. इट मीन्स ही लुक्ड इन ऑल डायरेक्शंस बट ही डिडंट फाइंड हिज पेरेंट्स एनीवेयर. A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. A full deep cry rose within his dry throat. उसके सूखे गले से जो है एक बड़ी तेज़ी से रोने की आवाज़ निकलती है. with a sudden jerk of his body, और एकदम से जो है उसकी शरीर में जो है क्या होता है, शरीर में एक झटका लगता है. एंड ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और जहाँ वो खड़ा था वहाँ से भागना शुरू कर देता है. क्राइंग इन रियल फियर, और वो जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और इसलिए जो है रोता हुआ जा रहा था. मदर, फादर, और साथ में क्या बोलता जा रहा था, मम्मी, पापा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, अब जो है आंसू उसकी आंखों से जो है लगातार बह रहे थे. हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर. अब जो है उसकी आंखों से कैसे आंसू बह रहे थे, बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से, वो बुरी तरह से जो है रो रहा था.
अब वो क्या देखता है, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, और उसका जो चमकता हुआ चेहरा था वो किस में तब्दील हो गया था, बहुत ज़्यादा डर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, बहुत ज़्यादा दुखी था। ही वेंट टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक दिशा में जाता है, देन टू द अदर, इधर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस, फिर वो जो है हर डायरेक्शन में जाता है, कभी यहाँ और कभी वहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मदर, फादर, मम्मी, पापा, ही वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और इस तरह से जो है वो चिल्लाता हुआ रोता हुआ जा रहा था। उसकी येलो टर्बन थी वो खुल जाती है, उसकी पगड़ी, और उसके कपड़े जो है वो मिट्टी में बुरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, और इस तरह से जो है वो इधर उधर भागते हुए कई देर तक वो भागता रहा, दौड़ता रहा, और एक जगह पे जो है जा करके हार करके खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज प्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब उसकी जो चिल्लाहट थी, जो रोने की बड़ी बड़ी चीखें थी, वो सिसकियों में बदल जाती हैं। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वीमेन टॉकिंग, अब जो है वो थोड़े से डिस्टेंस पे जहाँ पर ग्रीन ग्रास एक गार्डन था, वहाँ देख सकता था कि कुछ जो है मैन वीमेन जो है वहाँ पर बैठ करके बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, अब वो जो है देखता है, बड़ी ध्यान से कोशिश करता है कि वो अपने पेरेंट्स को इनमें कहीं पर नोट कर सके, लेकिन उसको जो है अपने फादर और मदर वहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो उसको क्या दिखाई दे रहे थे, जो हंस रहे थे, बात कर रहे थे, फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, सिर्फ जो है जैसे दिखा रहे थे, हंसते हुए बोलते हुए जो है दूसरों को। ही रन क्विकली अगेन, फिर से वो तेज़ दौड़ता है, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, अब वो एक श्राइन के पास जाता है जहाँ पर जो है लोग बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी ऑलरेडी। इवन एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन, यहाँ पर एक छोटा सा इंच स्पेस भी जो है बुरी तरह से वहाँ पर लोगों की भीड़ थी, कंजस्टेड एरिया था। बट ही रन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की टांगों के बीच से निकल के भागने लगा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, और उसकी जो सिसकियाँ थी छोटी छोटी, उनके के साथ वो क्या बोल रहा था, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और उस टेम्पल की जो एंट्रेंस थी वहाँ पर क्या था, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो है भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। मैन जोसल्ड ईच अदर, लोग जो है एक दूसरे को पुश कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स। Now what he describes here, explains here, that there were many people, that was very crowded area, and what he saw there, कि हर कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे की तरफ को पुश करने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत भारी भरकम आदमी जो बहुत मर्डरस आइज मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, वो जो है अपने शोल्डर से जो है लोगों को, दूसरे लोगों को जो है धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, हटाने की, अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, और वो जो है यहाँ वहाँ उनकी जो ब्रूटल बहुत बुरी मोमेंट्स वो कर रहे थे, उनकी जो सिचुएशन थी उसमें से जो है वो कोशिश करता है वहाँ से निकलने की। सॉरी, द पूर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, अब बेचारा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, उनके पैरों के बीच से जगह बनाने की कोशिश करता है। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, लेकिन उनके पैरों की जो भयानक मोमेंट्स थी उनकी वजह से जो है वो इधर उधर जो है बेचारा गिरता रहता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो तो जो है उनके पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, अगर वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है फादर और मदर को, अपने फादर और मदर को बुलाता नहीं। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms,
एक आदमी जो कि इस भारी भरकम भीड़ के बीच था, उसने उसकी जो है चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो झुकता है, मुश्किल से जो है उसको झुकने की जगह मिलती है और उस बच्चे को अपनी बाजू में ऊपर उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। अब जो है ये आदमी उससे पूछता है, जब स्टीयर्ड क्लियर मीन्स मूव्ड अवे फ्रॉम द क्राउड, जब वो उस बच्चे को लेकर के उस भीड़ से बाहर निकल आता है तब उससे पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ कैसे आए? द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड बिटरली देन एवर नाउ। अब वो बच्चा और भी ज़्यादा बुरे तरीके से जो है रोना शुरू कर देता है। एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और सिर्फ यही कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। आदमी उसको बहलाने की कोशिश करता है, उसको राउंड अबाउट उस झूले के पास लेकर के जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, और उसने जब वो रिंग के पास जाता है तो बड़े अच्छे तरीके से इससे बात करता है, उस बच्चे से उसको बहलाने की कोशिश करता है, चुप करवाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टॉर इनटू 1,000 श्रेल्स सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड, I want my mother, I want my father. But the child spoke only these 2 sentences. He didn't want to ride on this horse. उसकी जो गले से जो है सिसकियाँ निकल रही थी बुरी तरह से, और वो जो है he only shouted, वो सिर्फ चिल्लाता है कि मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए और मेरे पापा चाहिए। और उसकी आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसका गला जो है रो रो करके ख़राब हो जाता है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. अब वो आदमी उसको जो है कहाँ पर लेकर के जाता है? उसी स्नेक चार्मर के पास लेकर के जाता है जो कि अभी भी फ्लूट प्ले कर रहा था और जो है जिसकी तान पर जो है कोबरा स्विंग कर रहा था, झूम रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, इतने अच्छे म्यूजिक को सुनो बच्चे। ही प्लेडेड, वो उसको जो है रिक्वेस्ट करता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चा जो है अपनी कान में उंगली डाल करके अपने कानों को बंद कर लेता है। एंड शाउटेड हिज डबल पेस्ड स्ट्रेन, और ज़्यादा जोर लगा करके जो है वो क्या बोलता है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। नाउ द चाइल्ड ओनली वॉन्टेड हिज मदर और हिज father because he lose interest in all these things. He had lose all his interest from these things. The man took him near the balloons. Now the man took him near the balloon seller, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. वो सोच रहा था कि जो ब्राइट कलर्स हैं बलून्स के बच्चे की माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे, और इसकी वजह से जो है बच्चा चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम रेनबो कलर के बलून को पसंद करोगे? ही परस्यूएसिवली आस्क्ड, वो जो है बड़ी उत्सुकता से उससे पूछता है कि बेटा देखो इसको पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब बच्चा जो है उन बलून से अपना मुंह घुमा लेता है, मुंह फेर लेता है और सिर्फ सिसकियाँ भरते हुए क्या बोलता है? नाउ ही वॉन्टेड हिज मदर ओनली, नाउ ही वॉन्टेड हिज फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the sunflower sat. Look, can you smell those nice flowers, child? अब वो आदमी क्या करता है? उस बच्चे को फिर से खुश करने की कोशिश में लगा हुआ था। अब उस बच्चे को कहाँ पर लेकर के जाता है? गेट की तरफ लेकर के जाता है जहाँ पर फ्लावर सेलर जो है बैठा हुआ था, और कहता है कि देखो यहाँ पे कितनी सुंदर स्मेल, कितनी अच्छी स्मेल जो है इन फ्लावर्स की आ रही है बच्चे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें अपने गले में पहनने के लिए एक गार्लैंड चाहिए? बट द चाइल्ड डिनाइड। The child turned his nose away from the basket. Now the child turned away his nose. अब वो अपना नाक भी उस बास्केट की तरफ से दूर घुमा लेता है। एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, और फिर से जो अपनी सिसकी भरते हुए क्या बोलता है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर इज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। अब जो है वो आदमी क्या करता है?
अब वो आदमी सोचता है दैट काइंड पर्सन थॉट दैट ही कैन consolate this child by giving a gift of sweets. आप जो है उसने उसको स्वीट्स ऑफ़र की कि इस बच्चे को स्वीट्स दिलवा करके इसको जो है चुप करवाया जा सकता है, इसका माइंड डाइवर्ट किया जा सकता है. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और वो आदमी इसको जो है स्वीट शॉप के काउंटर पर लेकर के जाता है. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे खाना. ही आस्क्ड. द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट्स shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. But the child denied to eat any of sweets. He just started sobbing and he was just saying for his parents. So in this chapter we came to know that the little child loses interest in everything around him because he yearns to be with his family. He wanted to be with his family, his parents, who he had left behind somewhere in the crowded fair. And now he was just wanting his parents. The kind person who tried to make him silent, tries each and every option to make him quiet, but he failed to make it. So we have completed our chapter today. Tomorrow you will get a PDF file for the exercise on the school website. Thank you.